Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to study about topic metallurgy. It is a part of our chapter metals and non-metal that we have discussed in previous two videos, right? The very first thing that we should know is that how do elements occur in nature? हमें एलिमेंट्स अवेलेबल कहाँ पर हैं जहाँ से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो व्हाट वी सी दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. जो हमारे मेटल्स हैं वो हमें अर्थ के क्रस्ट, मेंटल कोर, वी हैव स्टडीड दीज 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड दे आर अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट. नाउ depending upon the reactivity of metals, their forms may be different, right? For example, we have got certain highly reactive metals like sodium, potassium, aluminium and zinc. Because they are highly reactive, so they are found in their compounds. Like they react with oxygen to form their oxides, sulfur dioxide form sulfides, or carbon dioxide they form carbonates. That means जो reactive metal हैं वो हमें किसी ना किसी combined form में मिलेंगे, right? If they combine with the oxygen, they will be available as their oxides. If they combine with carbon dioxide, they will be available as carbonates. But the less reactive metal जो होंगे, जैसे हमने gold, silver, platinum, these are noble metals we have talked about. So these are found in their free, or we call them as native state, because they do not react with any compound. वो किसी compound नहीं के साथ connect नहीं होंगे तो वो नए compound की form में available भी नहीं होंगे, right? So metals may be present in their free form or native form, and some may be in their combined form, right? Non-metals, they are found in their free as well as combined state also. In free state की बात करें तो हमारे पास कुछ metals हैं, non-metals like oxygen, nitrogen, that we know they are present in the atmosphere in the form of gases, right? Some other non-metals also exist in nature, maybe in the form of oxides or nitrates. For example, sulfur. Sulfur जो है वो हमारा free state में भी available है as well as it is available in their combined state like sulfides or sulfates. Carbon is another non-metal that exists in free as well as combined state. Free state की बात करें तो वो available है हमारे पास 3 forms में, diamond, graphite and fullerenes, right? और combined form में बात करें तो it is present, or we know that CO2, carbon dioxide, it is present in the form of combined form, right? Or in the form of carbonates. So these are some of the metals or non-metals. How do they occur in nature? Earth crust. अभी हमने बात की है कि हमारे जो metals हैं they are available in the earth crust, right? So metals की जो अर्थ क्रस्ट में हमें एक नेचुरली अक्रिंग फॉर्म मिलती है उसको हम कहते हैं मिनरल्स, राइट? सो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल हैं, किसी कंबाइंड फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ इन एज मिनरल्स, राइट? और वो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलते हैं. अब जितने भी मिनरल्स हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, क्या हम उनसे अपने मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो हमारे पास कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जहाँ से हम लोग मेटल्स को प्रॉफिटेबली यानी लार्ज अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. उस मिनरल का नाम है ओर. मीन्स देयर आर मेनी मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे अर्थ में प्रेजेंट, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही मिनरल्स हैं जो हमें मेटल प्रोवाइड कर सकते हैं.
So only those minerals are known as ores. तो ore is a mineral. मिनरल में से एक मिनरल ऐसा है जो हमें अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में मेटल प्रोवाइड कर सकता है, विच वन और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज नोन एज ओर. राइट. सो the useful ores from which we can extract metal, for example, that is aluminium जो है उसका ore है bauxite. ऐसे ही आयरन का एक ore है hematite. So there may be many mineral present in the earth crust, but we talk about ores क्योंकि वहाँ से ही हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. So metals can be extracted from their ores, right? अब मेटल को हमें जब ओर से लेना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. और अभी हमने कहा कि वो कंबाइंड फॉर्म में है और वो अर्थ के में प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में, तो ऑब्वियस है कि उसके साथ कुछ तो उसकी कंबाइंड फॉर्म प्रेजेंट है और कुछ उसके साथ अर्थ से कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं. सो आवर मेन पर्पस इज टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम द ओर, right? And we follow a step of processes to extract metal from its ore, and that we call it metallurgy. The processes used to extract pure metal from their ore. जितना भी एक ओर से हमें मेटल को निकालना है उसको हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, विच अल्टीमेटली विल गिव अस द प्योर मेटल. दैट ऑल सीरीज ऑफ स्टेप्स आर नोन एज मेटलर्जी. तो हमारे पास बहुत स्टेप्स आते हैं बीच में, लेकिन हम उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं मेन स्टेप्स में. द वेरी फर्स्ट इज द एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. अब हमने बात की कि ओर जो है अर्थ में बहुत सी इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट हो सकता है, राइट? और ऑब्वियसली वो कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि मैक्सिमाइज ओर को करना है. हमने ओर के साथ जितनी भी आलतू फालतू चीजें हैं, इम्प्योरिटीज हैं, गैंग की फॉर्म में, उसको हमें रिमूव कर देना है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द अर्थली और सैंडी इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर. और हमारे अलग अलग मेथड्स डिपेंड करता है हमारे पास कौन से टाइप का ओर या उसमें किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है उसके इम्प्योरिटीज की, तो उसके हिसाब से हम उनको अलग कर सकते हैं. जैसे हमें आयरन का अगर ओर है, हमें उसका क्या पता है कि आयरन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमें मालूम है, तो व्हाट कैन बी डू, वी विल फॉलो दैट प्रोसेस विच विल सेपरेट द ओर थ्रू अ मैग्नेट. तो हमें पता है, तो वो मैग्नेट की तरफ आयरन खींचता है, तो हम कुछ भी ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे अर्दली इम्प्योरिटीज, सैंड एटसेट्रा विल नॉट कम टुवर्ड्स मैग्नेट और मेटल और हमारा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो वी कैन रिमूव दोज इम्प्योरिटीज बाय यूजिंग मैग्नेट्स. तो दिस डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ मेथड वी विल यूज टू गेट द कंसंट्रेटेड ओर. नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन. Reduction means process of treating ore to get metal in the free state. अब क्या है, हमने पहले अर्दली इम्प्योरिटीज इंप्रूव की हैं, लेकिन अभी उसकी जो कंबाइंड फॉर्म है वो हमारे साथ अवेलेबल है, हम उसको उससे फ्री करना चाहते हैं. सो सेकेंड स्टेप विल बी रिडक्शन, कि मेटल जो भी कंबाइंड फॉर्म में है उसको उससे अलग किया जाए. अब सपोज वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा और उसको अलग करके हमारे पास मेटल बचेगा. लेकिन जो मेटल होगा वो प्योर नहीं होगा. तो लास्ट स्टेप विल बी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जो हमें ऊपर वाले स्टेप से मिला है. सो दीज आर 3 बेसिक स्टेप्स वी फॉलो टू गेट द प्योर मेटल. फर्स्ट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर. सबसे ज्यादा हम उसकी अर्दली इम्प्योरिटीज को इंप्रूव करेंगे, पहले ओर को कंसेंट्रेट करेंगे. दूसरा होगा उसकी कंबाइंड फॉर्म से उसको फ्री करेंगे. और थर्ड हमारे पास होगा उसको हम लोग प्योरीफाई करेंगे, हमारा मेटल प्योर फॉर्म में कैसे चेंज होगा, राइट? सो वी हैव गॉट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेटल्स, ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन मेथड्स. तो फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास देखिए ओर, अब ये अर्थ से जो हमें ओर मिला है वो इस रॉकी फॉर्म में है, राइट? दिस इज एन ओर ऑफ कॉपर, बट कोर को हमें यूज कॉपर को करना इन वायर्स की फॉर्म में. तो हाउ विल वी गेट द वायर फॉर्म ऑफ ओर, जो हमारे पास मेटल है उससे हम इस प्योर फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे उसको? बाय द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी.
तो जैसे कॉपर है, कॉपर का ये कॉपर सल्फाइड हमारे पास ओर है, ऐसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, जैसे ऑक्साइड फॉर्म में है। तो हमारा जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो डिपेंड करेंगे व्हाट टाइप ऑफ ओर एंड द मेटल वी वांट टू एक्सट्रैक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जैसे कॉपर की बात की, तो हमारे पास कॉपर का ये एक और अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए ये हमें एक कंबाइंड फॉर्म वाला और अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये हमारा अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है तो क्या होगा, इसके साथ बहुत सी अर्थ से इम्प्योरिटीज भी अटैच है हमारे पास, राइट। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप वी विल फॉलो दैट, वी विल रिमूव दिस इम्प्योरिटीज। ये हमें इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है, राइट। तो लेट अस रिमूव दिस इम्प्योरिटीज। तो पहला स्टेप तो हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब देखो क्या हुआ, इसकी सारी अर्दली इंप्योरिटीज चली गई एंड वी आर लेफ्ट विद ओर, राइट। अब ओर को हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू मेक दिस ओर फ्री फ्रॉम दिस। हमें अब इसकी कंबाइंड फॉर्म से हटाना है। तो पहला स्टेप हमारा, हमने उसकी सैंड और अर्दली इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास कॉपर आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेटल को, ओर को हीट करेंगे और हीट करने से हमारा मेटल जो होगा वो अपनी फ्री फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। बट क्या ये प्योर है, नो, दिस विल बी इम्प्योर एंड देन लास्ट स्टेप वी विल यूज प्योरिफिकेशन और वी कॉल इट एज रिफाइनिंग, ठीक है। अब यहां पर कॉपर की रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं, तो वी कॉल इट एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, राइट। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ मेथड दैट वी कैन use to get metal in pure form, right? So this is just basic of metallurgy, how can we get a metal from its ore in pure form। सबसे पहला स्टेप होगा, उसको हमें ओर को कंसंट्रेट करना है, यानी उसकी सारी अर्दली इंप्योरिटी जो उसके साथ अर्थ क्रस्ट से साथ लगी आ गई हैं उनको रिमूव करना है, राइट। और वो डिसाइड करेगा कौन सा मेथड हमारे पास हम फॉलो करते हैं, उसमें किस तरह का हमारा ओर है और कैसी उसमें इम्प्योरिटीज हैं। सेकेंड स्टेप, हमारा मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है, हमें उससे उसको फ्री करना है, ठीक है। हमारे पास अकेला मेटल बचेगा और फिर हमें उस मेटल को प्योर करना है, रिफाइंड करना है। सो दीज आर फ्यू स्टेप्स फॉलोड टू गेट मेटल इन प्योर स्टेट, that all processes come under a process known as metallurgy. Thank you. Please like, share and subscribe.